Right. So first thing we're going to deal with is Unit 1 के अंदर the basic economic problem. How do you define? Please don't hold any information back. NCIEs give maximum information in the most efficient time span that you can. But basic economic problem, we all know that people have क्या था unlimited सिर्फ wants होना चाहिए कि wants and needs भी होना चाहिए. It's both unlimited wants and needs versus um, limited finite resources, right? FOPs या factors of production. उसके बाद हमने कहा कि हाँ जी ये तो प्रॉब्लम है ये this is the entire problem which sort of discusses the idea of scarcity. This entire idea actually constitutes as scarcity. And scarcity leads to choices क्योंकि जब certain factors of production के आपको you have so many different things that you can do with it तो फिर आपके पास बहुत सारी choices होती हैं choice 1 choice 2 choice 3 but you say you know what all these choices don't matter what matters is the opportunity cost. How do you define that? It is the next best alternative, foregone, given up, जो भी तुमने वर्ड यूज करना है बट प्लीज अपनी डेफिनेशंस को आप बिल्कुल बुकिश रखो स्ट्रेट फॉरवर्ड यू डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट स्टफ एग्जांपल देना हो तो बेशक तुम एग्जांपल्स दे सकते हो बट दिस इज हाउ दिस होल chain of thought basically goes. But then this sort of leads to कि अच्छा जी अब choices हैं opportunity cost है एक choice पे जाओगे तो फिर उसकी कुछ you have to give up something. So the thing is उसको आंसर करने के लिए you go for the three economic questions. क्या ये important है economic questions? बहुत ज्यादा important है if you are answering a question about economic systems and how do they deal with um, different um, scenarios that they face, right? The market and the planned और उसके लिए. But I'll just introduce this right now. हमारे जो तीन economic questions हैं, which deals with what to produce. I think आज में तो अब तुम लोगों ने PhD कर ही ली है. What to produce, how to produce, and lastly for whom to produce. But they're not going to be so nice कि तुमसे ये पूछें कि बताओ जी कौन से इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर कौन सा ज्यादा how do they deal with these three questions, right? What to produce के अंदर तो आपको पता है we're talking about good, right? What you can deal with over here is आप अपने वो chapter unit number 1 का chapter number 6 जो है जिसको हम कहते हैं classification of goods. What am I talking about? I'm talking about there are different types of goods. Consumer goods and services होती हैं. आपके पास capital goods होता है. आपके पास public goods है. Merit goods है. Demerit goods है. There are so many types of different goods जिनकी classifications MCQs के लिए और case studies के लिए तुमको आनी चाहिए कि कौन सा classification के अंदर आता है and with definitions of course marks हैं essays और सब चीजों के अंदर ठीक हो गया we're gonna deal with these types of goods a lot more in detail but what to produce is this what we're looking at obviously what to produce के अंदर consumer मैटर करता है देन यू हैव हाउ टू प्रोड्यूस को कैसे डील करेंगे वेल हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर we're obviously looking at के प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज मोर प्रोड्यूसर्स डोमेन कि जी व्हाट टू प्रोड्यूस तो डिसाइड हो गया अब हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर आर वी गोइंग फॉर दोज are we going for a capital intensive method are we going for a labor intensive method कौन सा तरीका
कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और वो किस तरीके से होगा. ऑब्वियसली हु इज गोना बी मेकिंग दिस डिसीजन? द एंटरप्रेन्योर, राइट. एंड लास्टली, फॉर whom टू प्रोड्यूस. अब इसके अंदर मैक्रो की मैं स्टेटमेंट लेकर आऊंगा. वो एग्रीगेट डिमांड, हु डिमांड्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री. तो हमने कहा भाई सबसे इंपॉर्टेंट तो कंज्यूमर्स तो है. कंज्यूमर्स हैं, फर्म्स है, गवर्नमेंट है, फॉरेनर्स हैं, exports ना. I'm basically looking at CIGX. So for whom to produce के अंदर these are the people that matter. If you want to go into more details, तो consumers और इसके अंदर हो सकता है कि एक तो कंज्यूमर होता है who pays and consumes it, एक होता है जो सोसाइटी में vulnerable होता है, कैन नॉट अफोर्ड गुड्स एंड सर्विसेज, तो गवर्नमेंट उनको बना के दे देती है, राइट. वही ऊपर वाले टाइप्स ऑफ गुड्स की ही बात हो रही है. बट द क्वेश्चन एक दफा आया, उन्होंने कहा इन तीन क्वेश्चन में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, राइट. यू नीड टू हैव एन इवेल्युएशन एंड डिस्कशन के तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, राइट. So very difficult to single out one question. I think in one of the essays we did try to do it also. कि कौन सा सबसे ज्यादा important है. I think for me personally, I would single out अगर सबसे ज्यादा important है तो this is what it is. The consumer or the person who's going to be eventually consuming the product should be the matter of concern. Why do I say that? फॉर एग्जाम्पल आप फ्री मार्केट के अंदर हो. फ्री मार्केट के अंदर तो कंज्यूमर्स हैं, वो अपनी डिमांड प्रेफरेंसेस दिखाती हैं कि इस प्राइस पे हम यह खरीदना चाहते हैं. तो प्रोड्यूसर you know can't do what they want to do on a bigger scale, but they have to follow what consumers are saying. अब अगर आप कमांड इकोनॉमी में हो तो फिर क्या होगा? गवर्नमेंट इन्वॉल्व. तो गवर्नमेंट जो है, आ, वो भी तो एट द एंड ऑफ द डे देखेगी कि हमें वॉर रिलेटेड वेपन्स बनाने की जरूरत है. अगेन गवर्नमेंट इज डिसाइडिंग कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है. वेपन बनानी है, वॉर जंग लड़नी है, ठीक है. या दूसरा वो देखेंगे, ठीक है जी, अगर फूड आइटम्स बनाते हैं तो इतनी पॉपुलेशन है, इतना फूड होना चाहिए. यू अंडरस्टैंड. तो पॉपुलेशन आपके पास है, लोग जिंदा हैं, उनको खाने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट है. तो व्हाट टू प्रोड्यूस विल बी आंसर्ड बेस्ड ऑन कि आपकी सोसाइटी का क्या प्रोपोर्शन है. फिर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ साइज ऑफ द पॉपुलेशन, देन यू विल डिसाइड कि अच्छा जी उसके अंदर आपने फिर सॉरी, तो देन यू विल डिसाइड बेसिकली कि किस तरह से उसको बनाना है, राइट. तो किस तरह से बनाना है, दैट विल आल्सो बी डिपेंडेंट ऑन दिस. ओके, वन सेकंड. तो once we've answered these three questions, और मैंने इसमें से अपने हिसाब से सिंगल आउट कर दिया है, you can use a similar strategy to single out whatever. Everything is open, you can do that. ठीक है. तो ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 है. इन द मोस्ट नाइव वे, दिस इज हाउ इकोनॉमिक्स स्टार्ट. अब द थिंग इज, एक्चुअली जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हम इसको और थोड़ा सा ज्यादा बेसिक करके लेके जाते हैं. Like for example, how come we're not even defining the term economics? Like, is it important? Honestly, अभी तक कभी भी कोई definition इसके ऊपर नहीं आई है कि economics जो ये है क्या. Different economists और books के अंदर different theories हैं. तो हम उसके अंदर कह सकते हैं कि जी, economics is a study of how resources are distributed. ठीक है. इकोनॉमिक्स को हम एज अ सोशल साइंसेस कहते हैं. बाय द वे, नाउ दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर कोर्स बिकॉज देयर इज अ एंटायर चैप्टर जो पहले नहीं होता था, अब है. पहले भी हम इसको ऐसे ही डिफाइन करते थे दैट इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ सोशल साइंसेस. सोशल ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट society and people, and sciences deals with logic, right? Um, so somehow we feel that society and people have certain interactions which has certain
ए टूज में खास तौर पे तुम देखोगे लॉट ऑफ थ्योरीज विल से कि कंज्यूमर्स जो हैं वो रैशनल होते हैं, लॉजिकल होते हैं। तो इस तरीके से हम उस बात को मेंशन करते हैं, राइट? मोस्टली ए टू की थ्योरीज के अंदर है। लेकिन ए एस के अंदर भी ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि हम कहते हैं कि लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा लॉजिकली परफॉर्म करते हैं, बिहेव करते हैं। गुड्स खरीदने जाते हैं तो बड़ा साइंटिफिकली डिसीजन होता है। अब जहां तक साइंस की बात है, अब हम कह रहे हैं इसको साइंस। ओके, अ लॉट ऑफ पीपल विल नॉट अग्री कि ये साइंसेस है, बिकॉज साइंस का तो एक तरीका है। तरीका क्या है? एक कोई भी चीज आपको सॉल्व करनी हो तो साइंस कहता है ठीक है जी, एक मेथड है, उसके अंदर आप पहले आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम है। हम कहते हैं बहुत सारे लोग हैं और फ्यूल पेट्रोल वगैरह कम है, तो यू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। जब आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया तो अब कोई थ्योरी प्रपोज करो। थ्योरी प्रपोज या पुट फॉरवर्ड अ थ्योरी। थ्योरी क्या होगी कि अगर हम पेट्रोल को जो है, जो लिमिटेड है और इतने सारे लोग हैं, अगर हम ये फ्यूल हर किसी के लिए हर गाड़ी पे यूज करने के लिए रख लेंगे तो फिर गाड़ियां बहुत ज्यादा हैं, फ्यूल जो है कुछ ही लोग हैं जो अफोर्ड कर सकेंगे और फिर खत्म हो जाएगी और फिर ये एक प्रॉब्लम है। सोसाइटी का जो है मैक्सिमम लोग एडवांटेज नहीं ले सकेंगे। ठीक है, तो वो लाइक ठीक है, ओके, इट मेक सेंस। तो इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेट्स इन्वेस्टिगेट द थ्योरी दैट ये बात ठीक है, या इसका अदर प्रोपोजिशन कुड बी कि पब्लिक वेलफेयर रिलेटेड चीजों के अंदर यूज करना चाहिए। लेट्स इन्वेस्टिगेट एंड सी। आपने इन्वेस्टिगेट किया, देन इन द एंड यू आइदर एक्सेप्ट और you reject the theory. Now, what I've done just now, this part right here, ठीक है? Does that matter? कोई ऐसे आ सकता है इसके ऊपर? आया हुआ है इसके ऊपर रिसेंट के अंदर, in which you had to suggest कि इकोनॉमिक्स अगर सोशल साइंसेज है तो सोशल साइंसेज के अंदर किस तरीके से ये सारी चीजें किस तरह से आप इसको साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हो कि इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, तो जैसे आज अगर हम पूरा माइक्रो कर रहे हैं तो इस पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी होती है, इनफैक्ट आई विल राइट दिस ओवर हियर आल्सो बिकॉज़ यू नीड टू नो व्हाट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज। सो टुडेज agenda is कि we're going to be dealing with microeconomics. तो हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट? तो इंडिविजुअल्स के अंदर हम और तुम हो जाते हैं, इंडिविजुअल्स के अंदर हम कंज्यूमर्स, एंड इंडिविजुअल मार्केट्स के अंदर हम प्रोड्यूसर, बेसिकली डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, एंड इवन गवर्नमेंट, राइट? बेसिकली ये तीन तुम्हारे इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, मेजर इकोनॉमिक एजेंट्स ये हैं। तो बेसिकली हम इन तीनों को देखते हैं, इन तीन इकोनॉमिक एजेंट्स को देखते हैं, एंड देन वी पुट फॉरवर्ड अ थ्योरी कि किस तरीके से दे डू रिएक्शंस इन सर्टेन वेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम सोशल साइंसेज के अंदर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, थ्योरी प्रपोज कर रहे हैं, फिर उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, फिर एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं, तो ये बेसिकली पूरा एक साइंस का कॉन्सेप्ट है और इकोनॉमिक्स ये कॉन्सेप्ट को लेके चलता है। अब इसके अंदर ऑब्वियसली इस मॉडल के अंदर तुम दो तीन चीजों को और डिटेल में डिस्कस करते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल द कॉन्सेप्ट ऑफ सिट्रस पैरेबल, राइट? आई होप यू नो व्हाट सिट्रस पैरेबल्स इज बाय नाउ, क्योंकि जब ये तुम सोशल साइंसेज का और इकोनॉमिक्स का पूरा क्वेश्चन अगर तुम आंसर करना चाहते हो कि हाँ जी इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, तो फिर उसके अंदर तुमने ये भी डिस्कस करना है कि देखो जस्ट लाइक साइंस, किसी लैब के अंदर अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो यू डू मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स
और फिर उसके बाद उस एक्सपेरिमेंट की आप सर्टेन बाउंड्रीज पैरामीटर्स जिसको हम कहते हैं वो आप सेट करते हो, ठीक है। फिर आप सर्टेन पैरामीटर्स एक वक्त के अंदर एक सर्टेन पैरामीटर्स को चेंज करते हो। यू कांट मेस अराउंड विद अ लॉट एक ही वक्त के अंदर। ओके जी। सो सिट्रस पैरेबस का कॉन्सेप्ट क्या है, दैट वन factor is variable while all other factors are held constant. तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो माय एग्जांपल वुड बी कि अगर हम देखना चाहते हैं कि आईफोन की सेल को क्या होगा, तो सिट्रस पैरेबस वुड से कि लेट्स लुक एट द इनकम्स ऑफ पीपल and let's forget about what other competition is coming, how strong the competition is, how attractive the competition is, how is consumer behavior changing, vagera, everything on the side. Income is the variable factor. If income goes up, what happens? Income goes down, what happens? Irrespective of any other thing. एक चीज होती है सिट्रस पैरेबल। फिर इकोनॉमिक्स में डिसीजन मेकिंग होती है ऑन द मार्जिन। ऑन द मार्जिन का क्या मतलब है, दैट वी आर इंटरेस्टेड इन इज all other factors held constant, income, if it rises by this much, right? Or if income increases by $1,000, or if it rises by $2,000, or if it falls by 500. So margins will talk about by how much the change in variable, the change in variable, जैसे कि income इस केस में, will affect the demand or supply or whatever we're discussing, right? तो हर चीज के साथ फिर ये हो जाए। तो ये फिर मार्जिन को आप देखते हैं। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स के अंदर साइंसेस की आइडिया को लेके, ऑब्वियसली अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो उस एक्सपेरिमेंट की एक सर्टेन ड्यूरेशन होनी चाहिए कि आप कितने टाइम में कर रहे हो। तो देन दिस लास्ट बिट इज अबाउट कि जी टाइम पीरियड क्या रख रहे हो। इकोनॉमिक्स में हमने 3 टाइम पीरियड्स को डील किया है। एक था शॉर्ट रन, जिसमें हम कहते हैं कि देर इज एटलीस्ट कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हेल्ड कांस्टेंट, एटलीस्ट वन एफओपी हेल्ड कांस्टेंट, राइट। फिर हमारा था दूसरा टाइम ड्यूरेशन लॉन्ग रन, ऑल एफओपी आर वेरिएबल, ठीक हो गया। बट but what? But the state of technology constant रहेगा. You can't change the advancement in technology, because advancement in technology can change your productivity level. So when I'm saying machines can change, what I mean is you can increase the same kind of machines and reduce the same kind of machines. All right. तो वेरी लॉन्ग रन के अंदर ऑल एफओपी चेंज, all FOP and tech can change as well, right? So yeah, basically what we've just discussed right now in a nutshell is your unit number 1 का chapter number 2, that अगर हम कहते हैं कि economics is social science and it's a science, then what does it mean that it's a science? So it will use the property of what scientific theory is about, और फिर उसके बाद उस साइंटिफिक थ्योरी के अंदर हम इकोनॉमिक्स के अंदर सिट्रस पैरेबस का आइडिया, मार्जिन का आइडिया और टाइम पीरियड का आइडिया, इन तीनों को कंसिडरेशन में रखते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर ये वेरी लॉन्ग रन जिसके अंदर आप टेक्नोलॉजी चेंज कर सकते हो, वो तो ठीक है, वो इसके इतना ज़्यादा डिस्कशन होता नहीं है बाय द वे। मोस्टली व्हाट यू वुड नोटिस इज वी टॉक इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। क्या है वापस से बता देता हूँ।
short run would be a time duration, and in years or months, it can be many weeks, it can be many months, many years, and you can be in the short run. Example क्या है? If the farmer has one स्पेसिफिक जमीन और उसके ऊपर वो लेबर भी ऐड करता है और ट्रैक्टर भी ऐड करता है, तो आप शॉर्ट रन के ड्यूरेशन में ही हो। बेशक वो 5 साल से यही काम कर रहा है, लेकिन जमीन एक है, उसकी फर्टिलिटी सेम है, तो ये शॉर्ट रन टाइम ड्यूरेशन है, एंड इट कैन बी फॉर ईयर। लॉन्ग रन के अंदर वो जमीनें भी ऐड कर रहा है, नेक्स्ट डोर जमीन भी खरीद रहा है, वो लेबर भी इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, वो ट्रैक्टर्स भी इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, लेकिन ट्रैक्टर का जो मॉडल है वो चेंज नहीं कर रहा। दैट इज व्हाट वी मीन बाय द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी डजंट चेंज, बिकॉज न्यूअर ट्रैक्टर्स माइट बी मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव, इन लेस टाइम दे कैन डू मोर थिंग्स, राइट? वेरी लॉन्ग रन के अंदर फिर आप ये सारी चीजें along with the technology of the tractor you can change as well. So that would be very long run. तो ये अब हमारा हो जाता है कि ये तुम्हारा आइडिया है ऑफ दैट इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। ठीक हो गया, इसके ऊपर ऐसे आ चुका है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट दैट कम, ऑब्वियसली बाय इटसेल्फ इसके ऊपर कुछ भी नहीं आता, बट अगेन इकोनॉमिक सिस्टम्स के साथ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड ऑनेस्टली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के दो सवाल बनते हैं। एक सवाल बनता है कि इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्या यूजेज है। ठीक है, तो जब आप इकोनॉमिक सिस्टम्स के साथ करते हो तो डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज की क्या यूजेज है। अभी रिसेंट के क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ, अभी जो हमने किया भी वन ऑफ द डेज, कि एंटरप्रेन्योर के ऊपर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आ गई कि एंटरप्रेन्योर का क्या सीन है। अब ऑनेस्टली आई हैव बीन टीचिंग फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, एंटरप्रेन्योर को इतना ज्यादा सिंगल आउट नहीं किया जितना इन्होंने रिसेंट के टाइम्स में करना शुरू किया। इनफैक्ट दिस इज व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग कि कोर्स के जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर उन्होंने एम्फोसिस बढ़ा दिया है। नाउ एज फार एज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गो, यू शुड बी परफेक्ट in your understanding of the four factors of production. अगर तुम इन फोर फैक्टर्स में स्ट्रगल कर रहे हो बाय डेफिनेशन, तो बहुत बैड सीन है, इसको तुम सॉर्ट आउट करो किसी भी तरीके से। ठीक है, ऑनेस्टली इसमें इतना है नहीं वैसे कुछ एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज टू कॉल, बट इसके अंदर कुछ इतना है नहीं। इट्स एक्चुअली एंटरप्राइज जिसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, विच आई विल। जहां तक बात है लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर, ह्यूमन रिसोर्सेज, capital, obviously man-made tools, right? Or enterprise is the owner of the business usually. Certain technologies के ऊपर certain terminologies के ऊपर मैं जरा एक दफा तुमको बता दूं। ये तो है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज जो भी एक्सट्रैक्शनरी इंडस्ट्री से आ रहा है। लेबर के अंदर देखो, हम लेबर को डिफाइन करते हैं ह्यूमन रिसोर्स से, लेकिन प्लीज don't get confused if they use human capital. कैपिटल देख के तुम्हारा फ्यूज ना उड़ जाए कि ह्यूमन क्या है। भाई ह्यूमन कैपिटल इज ऑब्वियसली, वी मेंशन्ड बिफोर, इट्स द स्किल्ड इंडिविजुअल। उसके पास एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, समझदार है, कहीं भी जाएगा अच्छा काम करेगा, प्रोडक्टिव है, ऑब्वियसली पैसे भी ज्यादा मिलेंगे इसके लिए। लेकिन क्या जरूरी है, उसका पढ़ा लिखा होना, उससे उसकी पूरी सोसाइटी का इम्पैक्ट मैटर, उसकी ट्रेनिंग एजुकेशन मैटर। अब बात यह है कि तुम्हारा ह्यूमन कैपिटल ज्यादा है कि कम है। इफ योर आर्ग्यूमेंट इज कि ह्यूमन रिसोर्स वर्सेस ह्यूमन कैपिटल, तो भाई ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स होना डजंट मीन ज्यादा आउटपुट होना, एंड इवेंचुअली यू कनेक्ट दिस टू योर पीपीसी। ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स होना इज नॉट necessarily a good thing. ज्यादा ह्यूमन कैपिटल होना is definitely a good and a very positive thing. पढ़ा लिखा इंसान अनस्किल से बेहतर है। फिर यहाँ
कैपिटल के अंदर दे कैन यूज द टर्मिनोलॉजी physical capital. Now you see, if there is physical capital versus human capital ka distinction, this is how you make the distinction. Capital, yeah, physical capital, we're talking about machines, factory buildings, power plants, stuff like that, man-made tools, which helps you produce other things. अब जहां तक entrepreneur की बात है, एंटरप्रेन्योर जो है ये हमारा सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके तुमने जब भी डिस्कशन करना है एंटरप्रेन्योर को, एंटरप्रेन्योर के अंदर तुम्हारा डिस्कशन जो होना चाहिए दैट शुड रिलाई ऑन टू थिंग्स मेनली, दैट दे आर द रिस्क टेकर्स एंड दे कंबाइन अदर थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, बट क्या इनका यही काम है? नो। So for your fillers, you obviously have to talk about more stuff. Now, what stuff are we talking about over here? So what we're dealing with is कि भाई entrepreneur और क्या क्या करता है? Well, न, उसके काम तो और भी बहुत सारे हैं। For example, they're the risk takers, profit उसका, नुकसान उसका, वो बाकी सारे factors of production को combine भी करता है। बट साथ ही में एक अच्छा entrepreneur creative होता है, इनोवेटिव होता है। ठीक है, उसके अंदर इतनी सेंसिबिलिटी होती है कि वो अच्छे से ट्रेंड प्रिडिक्ट कर सकता है, राइट? उसके अलावा ऑब्वियसली वो अपने पैसे इन्वॉल्व करता है, जो वो अपने पैसे डालता है, उसके अंदर कुछ सर्टन लीडर क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा they're supposed to make the right decisions, बुक के अंदर थोड़े बहुत, I'm just picking it up from there, make right decisions। ये सारे तुम्हारे जो है बेसिकली एक पैराग्राफ के अंदर जब तुम एंटरप्रेन्योर को एक्सप्लेन कर रहे होगे अपने ऐसे के अंदर, तो यू गोना मेंशन दिस स्टफ, बट द की वन आर हियर, राइट? ये तुम्हारे मेजर है, बाकी ये सब तुम्हारा एक फिलर्स के काम पे तौर पे काम आएंगे। अब इन सब चीजों के अंदर फर्दर थिंग्स दैट यू वांट टू डिस्कस इज, देखें जी, ये शुरू के अंदर जो मैंने लैंड लेबर कैपिटल बोला, इसके अंदर जब तुम डिस्कशन कर रहे होगे तो वी वुड लाइक यू, इनफैक्ट तुम्हारे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर वी वुड लाइक यू टू हैव अ डिस्कशन अबाउट not only the quantity of these factors of production, but you want us to talk about the quality also. Understood? Because what's going on is कि certain countries, like for example when we talk about Australia, ये case study के अंदर ये they can pick up on this, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है उनकी जो मेजर एक्सपोर्ट है वो मेजॉरिटी डेयरी, मीट, एनिमल रिलेटेड है। उनका वेदर पूरे साल का, उनका जो लैंड और ज्योग्राफिकल पूरी वो सिनेरियो है उसको देखो, तो वो कॉम्प्लीमेंट करता है ज्यादातर इस डायरेक्शन के अंदर। प्लस फिर बाकी दुनिया के साथ उसका टाइम डिफरेंस इस तरीके से हो जाता है कि रेगुलर बेसिक मार्केट्स लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस वगैरह एक बहुत बड़ा एक डिस्पैरिटी क्रिएट होती है टाइम ड्यूरेशन के अंदर। बट द पॉइंट इज द क्वालिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, has an impact on what kind of goods should they be focusing on. So it's not just about quantity. ठीक हो गया। अब कुछ कंट्रीज होती हैं जिनके पास, जैसे पाकिस्तान है हमारा, नॉर्दर्न साइड के ऊपर डिफरेंट क्वांटिटीज एंड क्वालिटीज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, और सदर्न साइड पे डिफरेंट है। समथिंग एज सिंपल एज पोर्ट एंड सी का एक्सेस होना, right? That also changes the dynamic of what kind of industries or goods or factors of production that are available की basis के ऊपर क्या चीज कहाँ बननी चाहिए। So you want to make sure
दैट यू टॉक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर क्वांटिटी और क्वालिटी को अपने आंसर्स के अंदर जरूर इंक्लूड करो। अब एक रीसेंट का जो क्वेश्चन आया था, उन्होंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ बोला, एंड इट वाज गिवन इन वन ऑफ द स्कूल्स एसेज आल्सो, कि क्या कमांड इकोनॉमी के अंदर एंटरप्रेन्योर होता है कि नहीं होता। सो रिमेंबर वन थिंग, देखो एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है, बल्कि इनफैक्ट लाइफ लेसन, कोई भी गुड के लिए सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज होते हैं। आंख बंद करके यू शुड चूज कि एक गुड को प्रोवाइड करने के लिए सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज होते हैं। अब एक्सेप्शंस देखते हैं, या कोशिश करते हैं एक्सेप्शंस बनाने की। मैं सिंगल हैंडेडली काम कर रहा हूँ, फ्रीलांस काम कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम अ फोटोग्राफर। मैं अपनी एक छोटी सी कंपनी बनाता हूँ, मैं ही उसका फोटोग्राफर भी हूँ, मैं ही अकाउंटेंट भी हूँ, मैं ही लाइट मैन भी हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। मेरे पास इक्विपमेंट है, दैट इज कैपिटल। मेरे पास जो भी नेचुरल रिसोर्सेज दैट आई माइट बी यूजिंग फॉर इट, ठीक है। वर्स्ट केस कोई नेचुरल रिसोर्स ना मिले, तो यू कैन टॉक अबाउट द जमीन ऑन विच यू हैव योर ऑफिस ऑन, बट दैट्स द वर्स्ट केस सिनेरियो। फिर उसके बाद मैं खुद एंटरप्रेन्योर भी हूँ, बट मैं लेबर तो है ही नहीं। Well, you yourself is the labor of that business, right? क्योंकि at the end of the day तुम अपना human capital provide कर रहे हो, salary उठा रहे हो at the end of the day। तो तुम्हारा जो काम है, तुम entrepreneur भी हो और तुम labor भी हो, अगर तुम अपने ही उसमें काम भी कर रहे हो, ठीक है। तो मार्केट इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, जब प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होता है, तो प्राइवेट सेक्टर ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और यूजुअली हम क्या बोलते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो एंटरप्रेन्योर होता है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है, ठीक है, और वो मोटिवेटेड है। तो वो ये सारी क्वालिटीज जो है वो बेसिकली एक इंडिविजुअल या एक फर्म में है, और वो एंटरप्रेन्योर जो है इन तीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करता है, रिस्क टेकिंग करता है, आखिरी में नफा नुकसान उसका होता है, एंड देन इवेंचुअली दे बी क्रिएटिव एंड दे प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। कमांड में क्या होगा, कमांड में भी ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज होंगे, लेकिन जहां तक एंटरप्रेन्योर का केस है, भाई हु इज कंबाइनिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हु इज द रिस्क टेकर? वेल, द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट इज एक्टिंग लाइक एन एंटरप्राइज। वो एक बिजनेस है जो लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने में यूज हो रहा है। लेकिन फर्क क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट ने अपने कुछ बंदे हैं जो मैनेजर्स हैं, उनको बेसिकली ये वाले सारे काम करने को, और ये सारे काम करने को मैनेजर्स को अलॉट किया हुआ है। तो रिस्क टेकिंग गवर्नमेंट की है, और कंबाइनिंग का जो एलिमेंट है वो उन्होंने अपने मैनेजर्स को दिया है। सो गवर्नमेंट ऑन अ होलसम लेवल इज एक्टिंग लाइक एन एंटरप्राइज, क्योंकि कमांड में भी एंटरप्राइज एग्जिस्ट करती है। डोंट थिंक वो सिर्फ एक मार्केट मार्केट सिस्टम का एक कैरेक्टरिस्टिक है, या कोई एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ऑल थ्री इकोनॉमिक सिस्टम्स यूजेस ऑल ऑफ देम। इट्स जस्ट दैट कि वो डेलीगेशन हो जाती है कमांड इकोनॉमी के अंदर। उससे मोटिव चेंज हो जाता है कि गवर्नमेंट मोटिव इज सोशल वेलफेयर, और वो सोशल वेलफेयर के लिए जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहती है। हाँ, यू कैन हैव अ डिस्कशन ऑन के रिस्क टेकिंग का क्या सिनेरियो होगा, और नॉन प्रॉफिट की वजह से कितना मैनेजर्स की इन्वॉल्वमेंट होगी। नॉर्मली जब हम मैनेजर्स की बात करते हैं, तो हम मैनेजर्स को एंटरप्रेन्योर्स नहीं कहते हैं। मैनेजर्स आर बेसिकली लेबर, क्योंकि मैनेजर्स रिस्क टेक नहीं कर रहे होते, मैनेजर्स कंबाइन कर रहे होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। दैट इज व्हाट वी लर्न, ठीक है। तो थोड़ा सा दिस इज द आइडिया दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इन अ नटशेल। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्वांटिटी क्वालिटी के ऊपर जरा डिस्कशन को अपना अच्छा बनाना, टर्मिनोलॉजी लाइक ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में गड़बड़ नहीं करना, क्लोजली रीड करना, और एंटरप्राइज को थोड़ा सा अब बेहतर लेवल के ऊपर समझना सीखो। Then you come to your the next part of unit number one. I will try to end this as quickly as possible. Don't want to spend too much time on this. आपका फिर नेक्स्ट पार्ट आ जाता है भाई इकोनॉमिक सिस्टम्स के ऊपर।
इकोनॉमिक सिस्टम्स के ऊपर अगेन आई विल नॉट स्पेंड टू मच टाइम, बहुत दफा कर लिया है. You should be amazing in the definition aspect. ठीक है जी. डेफिनेशन एस्पेक्ट के अंदर तुम्हारा प्लांट की क्या सीन है, फिर मार्केट का क्या है, एंड देन फाइनली मिक्स का क्या है. व्हेन यू राइटिंग योर एसेज, प्लीज इनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस में फर्क रखो. प्लांट के अंदर वी से government owns the factors of production. Government decides every single thing. क्या बनानी है, किसको देनी है, कितनी देनी है, कैसे बनानी है. All questions answered by the government. No price mechanism का element over there. There's only public sector, and public sector is providing. ये मैं लिख लूं क्योंकि तुम सारे ये गड़बड़ करते हो. Public sector will be involved in providing private goods and public goods. समझ आ गई बात. Public goods और public sector are two different things. Please keep it that way. होशियारी नहीं मारना कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है तो पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है तो एवरीथिंग दैट गवर्नमेंट इज गिविंग अस इज अ पब्लिक गुड. मत करो ऐसी हरकतें. सेकेंडली, मार्केट के अंदर इट्स ऑल अबाउट इंडिविजुअल्स एंड firms. Individuals and firms, they own the factors of production. Government interference is next to nil. There is only private sector, and private sector will be providing all types of goods, जिसमें public good भी हो सकता है, लेकिन बड़ा problem है. Public good का free rider का issue है, which we will talk next. वो free rider का problem जो है तुमने उसको भी सॉर्ट करना है. क्लैरिटी आ गई है. फिर उसके बाद व्हाट वी हैव नेक्स्ट इज आवर डिस्कशन ऑन मिक्स्ड. भाई देखो, अगर वो कहते हैं प्लान्ड और मिक्स्ड, इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स, यू हैव बोथ द पब्लिक एंड द प्राइवेट. जब वो कहते हैं प्लान्ड और मिक्स में आप फर्क कर रहे हो, तो प्लान्ड और मिक्स के अंदर डिफरेंस क्या है, अपने ऐसे में ख्याल करो उस बात का कि प्लान्ड और मिक्स में डिफरेंस क्या है. प्लान्ड और मिक्स में डिफरेंस क्या है कि प्लान्ड के अंदर कोई फ्री मार्केट, कोई प्राइस मैकेनिज्म का कोई कॉन्सेप्ट प्लान्ड के अंदर नहीं है, लेकिन फ्री मार्केट के अंदर प्राइस मैकेनिज्म का सिस्टम है. In fact, you should let private sector do whatever private sector is interested in doing. करने दो. स्कूल बनाना है प्राइवेट सेक्टर को, बनाने दो. हॉस्पिटल्स बनाने दो. उनको बस सर्विस प्रोवाइड करनी है, करने दो. टैक्सीज करने दो. जो प्राइवेट सेक्टर को करना है उसको करने दो. ठीक है. दे विल डेफिनेटली बी अ लॉट मोर, क्या कहेंगे, efficient in it, right? They're going to be a lot more productive. They're going to efficiently use their resources. I think I'm repeating. वैरायटी भी मिलेगी उसके अंदर कंज्यूमर को, कंज्यूमर की मर्जी की चीज मिलेंगी, इंप्रूवमेंट्स मिलेंगी, ऑन टॉप ऑफ दैट इनोवेशंस भी मिलेंगी. समटाइम्स प्राइवेट सेक्टर डज दैट, राइट? बाकी फिर अब देखो, जब इतनी सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर कर लेगा तो फिर गवर्नमेंट का पूरी सिचुएशन के अंदर रोल मिनिमाइज हो जाएगा. और रोल क्या हो जाएगा? रेगुलेशन. होना भी ऐसे ही चाहिए. Private sector should be trying to deal with providing goods and services on the maximum level. जो जितने भी हम कहते हैं ना, जितने भी प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, जितना भी प्राइवेट गुड्स हैं, वो सब आप छोड़ दो इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स के ऊपर, और गवर्नमेंट को किस काम के लिए रखो. गवर्नमेंट का रोल जो होना चाहिए वो रेगुलेशन का होना चाहिए. अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस के साथ कुछ प्रोविजनिंग भी कर ले, यू सी द वर्ड दैट आई एम यूजिंग, अगर वो कुछ सर्टेन गुड्स की प्रोविजन भी करना चाहे, तो वो प्रोविजन जो है उनकी लिमिट हो जाती है
तू प्रायोरिटी किसकी है? पब्लिक गुड्स की। और फिर जो मेरिट गुड्स के अंदर थोड़ा सा शॉर्टेज है उसके अंदर, बाकी सब रेगुलेशंस पे छोड़ दो, बाकी सब रेगुलेशंस है। मेरिट डीमेरिट गुड्स की प्रोडक्शन कैसे होगी, लेबर की यूटिलाइजेशन कैसे होगी, एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं है, ये सारी चीजें फिर तुम गवर्नमेंट के हाथ में छोड़ दो फॉर रेगुलेशन पर्पसेस। सिंपल एज दैट, दैट्स हाउ यू डील विद द सिचुएशन। ठीक हो गया। तो ये तुम्हारा इकोनॉमिक सिस्टम्स है। मैंने गवर्नमेंट का रोल बहुत मिनिमाइज करके तुमको दिया है। प्लीज गो एंड टेक अ लुक एट द लेक्चर्स वी डेल्ट विद, उसमें देखो। लेकिन मैंने तुमको मेन इवैल्यूएशन का भी एक आइडिया बता दिया है कि प्लीज मिक्स इज द बेस्ट, ओके, बिकॉज planned and market both have issues. Issues come in terms of public goods, merit goods, demerit goods, pollution, exploitation of consumers and labor, ठीक है। या एंड रेगुलेशंस के अंदर तुम्हारे लॉज वगैरह आ जाएंगे, लेबर लॉज आ सकते हैं, सेफ्टी लॉज आ सकते हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या एडवर्टीजमेंट के ऊपर क्या लेबल्स होने चाहिए, ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस का हिस्सा है। ठीक हो गया। सो डू टेक अ लुक एट इट। इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, डिस्कशन कैन बी इन टर्म्स ऑफ, I've already discussed कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर किस तरह से तीन इकोनॉमिक क्वेश्चंस का आंसर हो सकता है। ये तीन इकोनॉमिक सिस्टम्स इन्हीं क्वेश्चंस को लेके बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को किस हद तक सॉल्व कर सकते हैं। नंबर वन, दिमाग में डाल दो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व, इट्स एन इम्पॉसिबल थिंग। What we can discuss is that the problem can be managed or limit कर सकते हो आप उसको। That is what you can discuss, ठीक है। So discussion के अंदर तुम्हारा जो है, um, you're gonna be talking about, like for example, I'm more of a free market individual. I prefer free market idea. लेकिन एक सर्टेन इकोनॉमीज हो सकती हैं जो बहुत ही कमांड के अंदर है और अभी फ्री मार्केट में उनका ट्रांजिशन करना है। प्लांट में तो हमें पता है बड़े प्रॉब्लम्स हैं, इनोवेशन किल है, एफिशिएंसी किल है, किसी के पास कोई इंसेंटिव नहीं है ज्यादा काम करने का, इनोवेट करने का, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ सफर करती है। वी हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट व्हेन वी स्टडी कमांड। पुरानी कंट्रीज देख लो, वी सीन दैट, और पुरानी मूवीज में भी इस आइडिया को बहुत प्रोपोगेट किया हुआ है। जब आप ट्रांजिशन करना चाहते हो फ्री मार्केट की तरफ, तो यू कैन नॉट बी इन वन सेकेंड ऑल रिसोर्सेज खत्म। जैसे पोलैंड है, पोलैंड के अंदर जब यूएसएसआर हारी थी वर्ल्ड वॉर, बल्कि इनफैक्ट पोलैंड गॉट इंडिपेंडेंस इन द 1980s आफ्टर, जो तुम्हारा सोवियत यूनियन से उनको छुटकारा मिला था लेट 70s अर्ली 80s के अंदर। So now all of a sudden free market ka concept comes in. Now, how do we make a free market economy? Should we allow everything to become ekdam se demand supply forces ke upar? Of course not. That's not what you do. Slowly and gradually you make things a little, aisa aisa se tum नॉन एसेंशियल्स के अंदर पहले आपने जो है प्राइस मैकेनिज्म को किया, और जो फूड रिलेटेड आइटम है उसको आपने कंट्रोल में रखा, ठीक है। तो असेंशियल्स को आप आहिस्ता आहिस्ता से ग्रेजुअली छोड़ोगे, ठीक है, और कुछ को एंड तक यू विल कीप इट अंडर द गवर्नमेंट, बट यू वांट टू गिव प्राइवेट सेक्टर एज मच ओपननेस एज पॉसिबल। अब ये तुम्हारा इवैल्यूएशन का डिस्कशन है, सो दैट्स हाउ इट गोस, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा स्टोरी लाइन और इस तरीके से बात को समझो। देन जितना टाइम आई फील इकोनॉमिक्स के अंदर हमने इस टॉपिक पे गुजारा है, इतना तो मेरा नहीं ख्याल कि हमने किसी भी टॉपिक के ऊपर इतना टाइम यूज किया है। क्या ये इम्पोर्टेंट है? ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है। अभी लास्ट ईयर के अंदर भी आया, उससे पिछले सालों के अंदर भी आया, अलग अलग तरीके से तुमको इसके अंदर ये लोग टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। पीपीसी को डिफाइन करना आना चाहिए। I'm not gonna write the definitions. I'll just deal with this chapter के अंदर मैं सिर्फ complications से deal करूंगा। Okay, that's it. Nothing more, nothing less.
Production possibility curve talks about two goods, for example, consumer goods and capital goods, that an economy can produce by fully utilizing its resources. There are two types of um, there are two types of production possibility curve in your course that you should know how to deal with. एक है increasing opportunity cost curve, concave to the origin. दूसरा है straight line, constant opportunity cost. Guys, focus please. So अब जो तुम्हारा increasing opportunity cost curve है, इसमें और कांस्टेंट में मेजरली क्या फर्क है? ठीक हो गया, इन दोनों में क्या फर्क है? तो मेनली हम ये कहते हैं कि देखें जी, इंक्रीजिंग में क्या हो रहा है, अब नंबर्स वाइज अ लॉट ऑफ यू आस्क कि भाई नंबर वाइज करने की जरूरत है कि नहीं करने की जरूरत है, तो भाई देख लो प्लीज, नंबर वाइज सिर्फ और सिर्फ इस वाले केस में करो। लेट मी गिव यू द नंबर्स, प्लीज इसी नंबर्स के साथ स्टिक करो और बस एक दफा रट लो इसको प्लीज, फिर बनी करो अपने ऊपर और ये वाला एक स्टैंडर्ड याद कर लो और फिर उसी के बाद ही चलो। ऑन द पेपर यू मेक अ लॉट ऑफ मेस अप स्टफ। नंबर्स के साथ इसमें भी चलना है, इक्वल डिस्टेंसेस, ग्राफ के अंदर इक्वल डिस्टेंसेस टू अ डिग्री बहुत मैटर करता है। इसमें देख लो क्या हो रहा है। सो लेट मी गो अबाउट इट, सॉरी। तो इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर ऐसे कर लेते हैं, 0 से 1 पे जा रहे हैं, 1 से 2 पे जा रहे हैं, यहाँ 2, 4 एंड 6। फर्क मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, बहुत पुराने किसी ऐसे के अंदर आया था कि वी नीडेड टू हैव अ डिस्कशन ऑन इंक्रीजिंग और इसको। तो भाई इंक्रीजिंग को जब हमने समझाना होता है तो सिर्फ द शेप डज नॉट इज सफिशिएंट, इज बिकॉज इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब मैं 0 से 1 गया तो ये एक बनाने के लिए मैंने दो गिव अप किए थे, राइट। इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट अब इसका नेक्स्ट पार्ट है कि जब मैं एक और बनाने के लिए अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मूव करता हूं तो फिर मुझे चार गिव अप करने पड़ जा रहे हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज शोइंग कि ये इंक्रीजिंग है, दैट द मोर रिसोर्सेज यू ट्राई टू पुट इन टाइप, एक टाइप के गुड के अंदर दूसरे का आपको ज्यादा 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 गिव अप करना पड़ता है। फिर फाइनली यू से कि इसकी वजह क्या है। वजह ये है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फार्मिंग में लगते हैं वही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन शू बनाने में नहीं लगते। इट्स नॉट टू डिफरेंट थिंग्स कंप्लीटली, यू नो। सो ये हो सकता है कि दो किस्म के जूते बनाने हैं अगर मुझे, तो फिर एक ही किस्म का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने सिर्फ इस जूते से हटा के इस वाले डिजाइन में मूव कर दिया। तो जूते जूते की बात हो रही है दोनों तरफ, तो वो कांस्टेंट वाला हो सकता है कि जी यहाँ पे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, ओके सॉरी, इंक्रीजिंग के अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, कांस्टेंट के अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि इफ यू हैव टू मूव रिसोर्सेज, अच्छा इंक्रीजिंग में क्या हो रहा है, जब मैं यहां पर हूं कंज्यूमर गुड्स बना रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर, इसमें हर किस्म का मेरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कंज्यूमर गुड्स के लिए अच्छा भी है और नहीं भी अच्छा है वो सब यहाँ इन्वॉल्व है। when I have the ability to send some resources towards capital, तो मैं सबसे पहले सबसे वीक रिसोर्सेज जो कंज्यूमर गुड्स में थे वो भेजता हूं इधर। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक, उसके बाद मेरे इंपॉर्टेंट वाले जाने शुरू हो जाते हैं। हेंस आई हैव टू गिव अप अ लॉट ऑन द कंज्यूमर बिकॉज factors of production are not perfectly substitutable, factors of production are not equally productive। क्या ही लफ्ज हैं ये, ख्याल करो।
नॉट इक्वली प्रोडक्टिव। इसकी वजह से मैं सबसे वीक पहले भेजता हूं तो मैं कम गिव अप करता हूं। यहां पे दे आर इक्वली प्रोडक्टिव। तो ये पीपीसी के अंदर एक इनके शेप के अंदर ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट स्टफ दैट यू शुड नो अबाउट पीपीसी। देखें जी, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का डिस्कशन पहले भी हो चुका है। प्लीज अपने शॉर्ट रन लॉन्ग रन के डिस्कशंस को अच्छा करो। एक आइडिया है, जब कोई भी शेप नहीं दिया हुआ तो इंक्रीजिंग के साथ वर्क करो। कहते हैं आप पॉइंट ए पे प्रोडक्शन कर रहे हो और फिर यू डिसाइड पॉइंट बी पे जाने की, तो क्या होगा? बताएं जी क्या होगा? प्लेंटी ऑफ टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज कम अप। शॉर्ट रन के अंदर रीजन क्या है? रिसोर्स रीएलोकेशन। इंपॉर्टेंट टर्म, जब भी तुम मूवमेंट अलोंग द कर्व की बात करोगे, देयर इज रिसोर्स रीएलोकेशन टेकिंग प्लेस। दैट्स योर रीजन बाय द वे। ये रीजन है, जैसे हम शिफ्ट के रीजंस बोलते हैं ना, डिस्कवरी ऑफ मोर नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर प्रोडक्टिव हो जाता है, ये सारे रीजंस हम बोलते हैं। शॉर्ट रन में मूवमेंट अलोंग द कर्व का रीजन है रिसोर्स में रीएलोकेशन है। यूर डिसाइडिंग कि हमने कंज्यूमर गुड्स कम बनाने, कैपिटल गुड्स ज्यादा बनाने हैं। विल इट हैव एन इमीडिएट इफेक्ट? ऑफ कोर्स। दिस, अगर तुम डिस्कस करो शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन, तो ये रिसोर्स रीएलोकेशन का इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा इमीडिएट है। अच्छा जी, फिर लॉन्ग रन में क्या होगा एज अ रिजल्ट ऑफ दिस? तो आप कहते हो कि लॉन्ग रन में इसकी वजह से आउटवर्ड शिफ्ट इज एक्सपेक्टेड। Why did I make this? Why didn't I make, why did I not make a pivot shift to the right? Is this wrong? Well, it's not wrong, but it's not ideal. What happens is कि जब हम consumer से capital पे जाते हैं and we're making more machines, what it's going to do for our future is that it's going to increase our ability to produce more of both goods in the future. Understood? दोनों में इंक्रीज आएगा। हाँ, ये तुम बात कर सकते हो कि इसमें थोड़ा आएगा उसमें ज्यादा आएगा। इस किस्म का डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ कब वैलिड है? ये डिस्कशन तुम तब करोगे जब तुम बोलोगे कि, या तुम एम्फसाइज करोगे ऑन द फैक्ट कि जी इसकी वजह से जो है इस इंडस्ट्री पे ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है और दूसरी इंडस्ट्री के ऊपर जो है कम इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है? सो दैट्स हाउ इट गोस। फिर उसके बाद ये शॉर्ट रन लॉन्ग रन का डिस्कशन हो गया। बाय द वे, दिस वन इज योर लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट। दिस इज हाउ इट गोस। ओके। फिर उसके बाद और फर्दर डिस्कशन क्या हो सकता है? Very closely you see the word, what kind of words are they using in terms of कि क्या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है? सो इफ देयर सेइंग अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट यानी थी और अब ज्यादा हो गई है। यू अंडरस्टैंड? दिस मूवमेंट इज शोइंग अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। ठीक है? इफ देयर सेइंग अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, तो देन आई एम मूविंग फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट डी। अगर वो कह रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट हो गई है, तो पॉइंट डी पे मैं आ गया ऑन द पीपीसी कर्व। आई मूव ऑल द वे। ठीक है? यहाँ पे आई शुड टॉक अबाउट दिस, थोड़ा सा मैक्रो का आइडिया है, लेकिन सिंस वी आर डूइंग दिस एंड पीपीसी शोज बोथ माइक्रो एंड मैक्रो डिस्कशंस, तो जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, राइट, इकोनॉमिक ग्रोथ शॉर्ट रन में भी होती है और लॉन्ग रन में भी होती है। ठीक है जी? फर्क क्या है दोनों के अंदर? शॉर्ट रन की इकोनॉमिक ग्रोथ एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ भी कहलाई जाती है, कॉल्ड एक्चुअल। शॉर्ट रन में एक्चुअल पे काम हो रहा होता है कि असल जीडीपी का क्या सिचुएशन है। और लॉन्ग रन के अंदर
पोटेंशियल की बात हो रही होती है। आई गेस पीपीसी के अंदर इसकी रिप्रेजेंटेशन तुम दिखा सकते हो। पीपीसी के अंदर मेरी क्या रिप्रेजेंटेशन हो सकती है एक्चुअल और पोटेंशियल की? इट्स दिस। पॉइंट ए पे हो, पॉइंट बी पे गए हो, ये शॉर्ट रन है, ये एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ है। ठीक है। अगर लॉन्ग रन की बात करते हैं, नाउ आपकी इकोनॉमी तो इधर ही है, ठीक है, ए से बी एक्चुअल ग्रोथ आई, जीडीपी में इंक्रीज आया, लेकिन अब अगर ये शिफ्ट हो गया तो इसको हम बोलते हैं दिस इज द लॉन्ग रन, दिस इज पोटेंशियल ग्रोथ। Productive capacity is the term we used in our definitions for this economic growth. तो ये लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट। ओके। इकोनॉमी को फिर फॉलो करने के लिए फिर आपको वो डिमांड साइड पॉलिसीज और इनको यूज करना पड़ता है कि फिर इकोनॉमी जो है वो बी से सी की तरफ होता है। ठीक हो गया। तो ये तुम्हारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। आई डोंट वांट टू स्पेंड मोर टाइम ऑन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, बाकी अपने हिसाब से तुम लोग देख लेना इसमें और मजीद क्या समझने की जरूरत है। ठीक है। फिर अब पीपीसी दोबारा वापस से आएगा जब हम इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी करेंगे, दैट्स व्हेन दिस इज गोना मेक अ कमबैक। उसमें फिर तुम्हारा वो टीपीसी की बात होगी, ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी का। ठीक है। फॉर नाउ वी डोंट नीड टू हैव अ डिस्कशन ऑन दैट। यूनिट वन का, ओके, तो यूनिट वन का फिर लास्ट बिट के ऊपर आ जाते हैं। द लास्ट बिट ऑफ यूनिट वन इज अबाउट द क्लासिफिकेशन और द टाइप्स ऑफ गुड्स। इसमें क्या याद करने की जरूरत है? ऑनेस्टली दिस चैप्टर इज नॉट, this is a fundamental chapter, but I don't know what to teach in this because we've again after PPC इस चैप्टर पे सबसे ज्यादा फोकस रहा है। सबसे पहले तो अपने दिमाग के अंदर ये डायग्राम फीड कर लो so that you avoid unnecessary mistake। गुड्स की क्लासिफिकेशन के अंदर पहली क्लासिफिकेशन, टीयर वन क्लासिफिकेशन जो आपकी होती है वो है फ्री गुड वर्सेस इकोनॉमिक गुड। बहुत आता है फ्री गुड। फ्री गुड को डिफाइन करना और इकोनॉमिक गुड को डिफाइन करना आना चाहिए। फ्री गुड के पीछे जो है देयर इज नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि उसको बनाने के लिए नो स्कैर्स रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड। यूजुअली हम कहते हैं ये नेचर में अबंडेंट होते हैं, सी वाटर, सनलाइट, सॉल्ट वाटर, सी वाटर ही हो गया, विंड एनर्जी, विंड नॉट एनर्जी, जस्ट विंड। ठीक है। इकोनॉमिक गुड की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, यानी उसको बनाने में सर्टेन रिसोर्सेज यूज हो रहे होते हैं, तो रिसोर्सेज या तो ये कर सकते हो या ये कर सकते हो, राइट? तो फिर आप यू हैव टू मेक अ डिसीजन, तो फिर इकोनॉमिक गुड हो जाते हैं। फ्री गुड की अब कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। अब इसके बाद फ्री गुड के अंदर फिर तुम्हारे पास दो क्लासिफिकेशन आती हैं। वन इज योर पब्लिक गुड एंड द अदर वन इज प्राइवेट गुड। ठीक है। जब तुम पब्लिक गुड्स को डिस्कस करते हो तो यू हैव टू, चॉइस नहीं है, तुमने पब्लिक गुड्स के बारे में लिखना है। देयर इज नो चॉइस बट टू टॉक अबाउट द कैटेगरीज, दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल। ऐसे मैंने ड्राइव पे किए हुए रखे हुए हैं, प्लीज ड्राइव पे जाओ और इन ऐसे को और उसके राइटअप को रटे मारो। इस साल फिर इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ये तीसरी वाली मैं लिख रहा हूं, रिजेक्टेबल। पहली दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर जब हम पब्लिक गुड की बात करते हैं तो नेचुरली यू कांट फॉरगेट कि पब्लिक गुड प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं करता, बिकॉज ऑफ द फ्री राइडर प्रॉब्लम। यू मस्ट नो दिस, यू गॉट राइट दिस। फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या होता है? क्योंकि बिकॉज प्राइवेट सेक्टर चार्ज नहीं कर सकता और ये गुड क्योंकि नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, मतलब हु हैज पेड एंड हु हैज नॉट पेड, जब तुम फर्क ही नहीं कर सकते तो पैसे कैसे लोगे, और पैसे नहीं लोगे तो फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग का तो ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। एंड प्लस
अगर आप ये गुड्स प्रोवाइड कर देते हैं होपिंग कि पीपल विल पे, तो हमें पता है इसके अंदर लोग कभी भी पे नहीं करेंगे और जो है ये गुड कभी भी प्रोवाइड नहीं होगा। हेंस द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड इट। ओके, जब हम प्राइवेट गुड्स की बात करते हैं, should we talk about private goods के अंदर excludability, rivalry and all of that? Of course you have to. Even though तुमने non excludable के अंदर definition दे दी है, अब उसको excludable में convert करो। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स रटे मार के जाओ। वैसे तो आने चाहिए, क्योंकि जब वो कोई गिफ्ट गुड तुमको उठा के देंगे, तो अगर उन्होंने कोई मेंशन कर दिया है क्वेश्चन के अंदर गुड, तो द लास्ट थिंग यू वांट टू डू इज बी लाइक ओ ये क्या गुड है, हमें तो नहीं समझ आ रहा। ठीक है जी, रिजेक्टेबल अगेन इज नॉट इम्पोर्टेंट। देखो जी, जो तुमको पढ़ाते हुए और अपने टाइम में ये अंदाजा तो यही हुआ है कि तुम्हारा जो फ्यूज होता है बेसिकली, वो फ्यूज हो जाता है द सेकंड दे यूज द वर्ड कि ये गवर्नमेंट मुफ्त में दे रही है। उसके बाद तुम्हारी सारी अक्लमंदी, सेंसिबिलिटी सब लूज हो जाती है, एंड इट फ्रस्ट्रेट्स मी एज यू कैन प्रोबेबली जस्ट हियर माय sarcasm sort of टोन हो गई है। कुछ पता नहीं, तुम लोगों को डे वन से सब जाने की ये कोशिश करते हैं हम, लेकिन तुम लोगों को ये बात नहीं समझ आती कि कोई भी चीज अगर मुफ्त में प्रोवाइड हो रही हो, तो दैट डज नॉट मेक इट अ पब्लिक गुड। पब्लिक गुड के लिए सिर्फ द एलिमेंट ऑफ एक्सक्लूडेबिलिटी शुड बी देयर, वेदर गवर्नमेंट फ्री में दे रही है कि चार्ज कर रही है। अगर कोई चीज के लिए तुम चार्ज करना चाहो और कोई तरीका है, वो चीज एक्सक्लूडेबल हो जाएगी, सिंपल एज दैट, और वो फिर प्राइवेट की कैटेगरी में चली जाएगी। दैट्स हाउ इट वर्क्स। ठीक है जी। अब जब हम प्राइवेट गुड्स कर लेते हैं, अब पब्लिक गुड की कहानी खत्म हो जाती है। अब जितनी भी फर्दर क्लासिफिकेशन हैं गुड्स की, जैसे कि तुम्हारे कंज्यूमर गुड्स हो गए, कंज्यूमर में ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल का डिस्कशन आ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा कैपिटल गुड्स आ सकता है, फिर तुम्हारा मेरिट आता है, और फिर तुम्हारा डीमेरिट आता है। ठीक है जी। रिमेंबर, ऑल ऑफ देम आर पार्ट ऑफ प्राइवेट गुड्स। कोई नई चीज नहीं है, कोई अपनी इनकी कोई खुद की कैटेगरीज नहीं है, देर ऑल पार्ट ऑफ प्राइवेट गुड्स। कंज्यूमर गुड्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन जो बनता है वो ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल का बनता है। ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल के अंदर पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल उसका भी आइडिया आ सकता है। कैपिटल गुड्स के अंदर तो वी ऑलरेडी हैड आवर डिस्कशन, इट्स अबाउट फिजिकल। Public goods are non-rejectable. Usually they say public goods are non-rejectable. They can be, like we say कि जरूरी नहीं है, कुछ चीजें जैसे स्ट्रीट लाइट है मैं नहीं रिजेक्ट कर सकता उसका यूज, राइट? ये once is provided I have to cross through the road, I can't reject it, it's not possible for me to। ठीक है, सी व्यू है, सी व्यू मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ, मैंने नहीं जाना, मुझे नहीं पसंद पानी मिट्टी, मैं नहीं जाऊंगा। तो उस एलिमेंट के ऊपर हो सकता है। टोल की जहां बात आ जाती है, देखो जहाँ टोल की बात आ गई तो टोल मीन्स व्हाट। अगर तुम सिर्फ गूगल भी कर लो तो टोल का मतलब क्या होता है। टोल यूजुअली, मैं इनफैक्ट लेट मी जस्ट बी प्रिसाइज एंड लेट मी जस्ट सर्च कि ये टोल का वर्ड, क्योंकि हम यूजुअली कहाँ देखते हैं, हाईवेज वगैरह के ऊपर ब्रिज जो चार्जेबल होता है। ठीक है, टोल दे के जाना पड़ेगा, टोल फ्री रोड। टोल का क्या मतलब हो गया कि एक ऐसा रोड या ब्रिज जहां पे पैसे दे के जाना जरूरी है। तो इफ दे से कि एक टोल फ्री रोड के ऊपर गवर्नमेंट पैसे नहीं चार्ज कर रही, तो अब बताओ ये कौन सा टाइप का गुड हो गया। तो भाई, टोल का मतलब ये है कि इसका, ये एक चार्जेबल जगह थी, वहां गवर्नमेंट उनको फ्री में जाने दे रही है, तो वो उनकी मेहरबानी हो गई है। लेकिन क्योंकि वहां पे आ, टोल चार्ज हो सकता है, क्योंकि बैरियर गिर जाता है। आप बैरियर लगा सकते हो कि कोई आ रहा है तो मैं आपसे चार्ज करना चाहता हूँ, बैरियर नीचे किया, आप नहीं जा सकते जब तक आप पे नहीं करो, तो ये एक्सक्लूडेबल हो जाता है, राइट? सो टोल वाला, टोल का वर्ड समझो, टोल मीन्स दैट समथिंग विच इज, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ चार्जिंग ओवर देयर। ठीक है,
फिर एक ये हो सकता है, अदरवाइज जैसे तुम्हारे जो बेसिक रोड नेटवर्क्स है, वहां वो टोल वाले नहीं होते हैं, राइट? वहां तो बोलो ये तो टोल फ्री है, नहीं भाई, यहाँ टोल लग भी नहीं सकता अगर तुम लगाना भी चाहो, बिकॉज देयर आर सो मेनी एंट्रेंसेस एंड सो मेनी एग्जिट्स that there is no possibility of charging people in any way. It's just impossible to do so. ठीक हो गया? तो प्लीज मेक एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। फिर आगे बढ़ते हैं, बात मेरिट गुड्स इज पार्ट ऑफ प्राइवेट गुड्स, ठीक है? लेकिन इसको हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ दैट इट बेनिफिट दोज हु पे फॉर इट, and it also benefits the third party. You want to have a discussion on the positive externality ka element in this one. So please make sure that you know what that means. Positive externality का word use करते हो, examiner को ये लफ्ज बहुत पसंद है। It's a spillover effect, a positive spillover effect. वैक्सीनेशन का एग्जाम्पल लेके जा सकते हो, एजुकेशन का एग्जाम्पल लेके जा सकते हो। अगेन दीज आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आई डोंट वांट टू स्पेंड टाइम इन इट। डीमेरिट के ऊपर जो है वहां पे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी की बात आती है, वही स्पिल ओवर इफेक्ट जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, दैट्स योर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डीमेरिट गुड्स एंड यू डोंट टॉक अबाउट एक्सटर्नैलिटीज, देन योर आंसर हैज सीरियस प्रॉब्लम्स इन इट। ठीक है जी। अब इवैल्यूएटिव बेसिस क्या हो सकती हैं इसके अंदर? इवैल्यूएशंस के अंदर वो कहते हैं जी, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ गवर्नमेंट को कौन सी गुड्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए। द थिंग इज गवर्नमेंट हैज नो चॉइस बट टू प्रायोरिटाइज पब्लिक गुड्स, ठीक है? बट जब हम देखते हैं प्राइवेट गुड्स के अंदर, मेरिट के अंदर एजुकेशन और हेल्थ केयर, हमें लगता है यार ये भी प्रोवाइड करना चाहिए। अच्छा, बाय डेफिनेशन समझो, अ, अब बाय डेफिनेशन के अंदर क्या होता है कि पब्लिक गुड्स तो प्राइवेट गुड्स का, प्राइवेट सेक्टर कभी बनाएगा ही नहीं। प्राइवेट गुड्स जो है उसमें जो मेरिट आ जाता है वो कुछ हद तक तो प्राइवेट सेक्टर बना देगा। यू अंडरस्टैंड? अब बात यह है कि हम जब डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं पब्लिक गुड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, और मेरिट के अंदर बोलते हैं हम कि इट शुड बी। यू सी द डिफरेंस? एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो नॉर्मेटिव के हिसाब से इट शुड बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इज अ सब्जेक्टिव आइडिया। मैं भी कहता हूं कि गवर्नमेंट को एजुकेशन और हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी चाहिए, बट शुड दे, प्रोविजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, शुड दे प्रायोरिटाइज इट? वेल, वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है कि गवर्नमेंट का रिसोर्स कितना अवेलेबल है। फ्रॉम माय इवैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू, आई वुड से that if the government has very limited resources, they should make focus towards public goods. रेलवे नेटवर्क्स लगाओ या फिर यू नो रोड नेटवर्क्स बनाओ, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगाओ। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर गैस पाइपलाइन और ये एक बड़े स्केल के ऊपर काम करने की जरूरत है तो करो, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो पूरे मुल्क की लाइंस वगैरह लगा सके, और लगा ले तो उसके बाद यू कांट गिव देम द एबिलिटी टू, it's just not possible for them to even charge for it for the next what 100 200 years। इतना पैसा है ही नहीं किसी के पास। तो गवर्नमेंट हैज टू फोकस मोर ऑन पब्लिक गुड्स। अब इसमें डिस्कशन, इवैल्यूएशन ये बढ़ सकती है कि गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड अ डिसेंट अमाउंट ऑफ पब्लिक गुड्स, जिससे आपका एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, और फिर थोड़ा सा रिसोर्स बचा के जो है एजुकेशन और हेल्थ केयर पे भी लगाएं, तो फिर ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। बट अगर गवर्नमेंट के पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो पब्लिक के अलावा उनके पास ऑप्शन बचता ही नहीं है, क्योंकि द गुड थिंग इज मेरिट गुड्स प्राइवेट सेक्टर कुछ तो प्रोवाइड कर ही देगा, यू नो, एंड पीपल नौकरी वोकरी करके, काम वाम करके कुछ अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लेंगे, तो एटलीस्ट इट्स नॉट जीरो वाली सिचुएशन। पब्लिक गुड में तो जीरो सिचुएशन हो जाएगी, उसमें तो फिर वी रिलाई अलॉट ऑन द वेलफेयर इन द प्राइवेट सेक्टर, इन देयर बेनेवलेंस ऑफ हार्ट, दे ट्राई टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये बहुत ही आई वुड अगेन, इसके अंदर माई प्रेफरेंस इज गवर्नमेंट शुड फोकस मोर ऑन पब्लिक गुड्स डिपेंडिंग ऑन द फंड्स दे हैव अवेलेबल।
तो वो इस तरह से कर सकते हैं। जैसे गाँव के अंदर ठीक है ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में बड़े शहर हैं, छोटे शहर हैं। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? वेल गवर्नमेंट को क्या ये करना चाहिए कि मेन शहरों में जहाँ लोगों की अच्छी इनकम्स हैं, पैसे हैं, वगैरह-वगैरह है, तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे फ़ोकस करें क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की मेरिट ग्रोथ खुद वो लोग प्राइवेट सेक्टर अपना सॉर्ट आउट कर लेंगे। गाँव एरिया के अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे फ़ोकस ज़रूरी है, तो वहाँ का रिसोर्स थोड़ा-सा बचा के इधर आके बेसिक प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस किया जाए और ज़्यादातर एजुकेशन और हेल्थ केयर के ऊपर फ़ोकस किया जाए।